Assalamu alaikum. Today I am going to discuss two concepts, economic capital and regulatory capital. These two concepts, by the title, they seems very similar concepts, but actually they are not similar, they are very different. Economic capital is an internal capital, you can say that, the internal requirement, and regulatory capital is external requirement for the banking institutions. So the economic capital, the size of economic capital of a bank serves as a shield against unexpected losses. It means that if a bank may face an unexpected loss, then that economic capital will serve as cushion. तो जब भी किसी बैंक को, खा वो इस्लामी हो या सूदी बैंक हो, उसको अगर कोई गैर मुतवक्के किस्म का नुकसान होता है, तो ये उसका इकोनॉमिक कैपिटल होता है जो उसको सहारा देता है, ढास देता है और उसको इंसॉल्वेंट होने से बचा लेता है. सो ये दिस इज द बेसिक serving function of economic capital. So economic capital requirement seeks to ensure that risk exposure of a banking institutions are backed by an adequate amount of high quality capital which absorbs losses on a going concern basis. So in economics, in finance, ongoing concern, it is a separate, it is a special term and it is a special concept. For example, we can say that an entity prepares financial statements on going concern basis when under the going concern assumption the entity is viewed as a continuing in business for the foreseeable future. तो इसका मतलब ये है ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस का, यानी इदारे की मैनेजमेंट वो मुस्तकबिल के अंदर अपने आप को मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, इदारे को रखना चाहते हैं कि वो बिजनेस का जो है वो उसको जारी रखे, और अगर उसको कोई नुकसान आ जाए गैर मुतवक्के किस्म का, तो उसके पास इतना कैपिटल कुशन होना चाहिए कि वो लॉस को एब्जॉर्ब कर सके और फिर उस फर्म को, बैंक को मार्केट के अंदर सस्टेन कर सके. तो ये जो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो मार्केट में सस्टेन करें, इसको वो कहते हैं कि दिस इज गोइंग कंसर्न बेसिस, कि वो अपने आप को ऑन गोइंग रखना चाहते हैं कि वो मार्केट के अंदर सर्वाइव करते हैं. सो दिस आइडिया इज नोन एज going concern. So on this going concern basis, economic capital is maintained by a bank to meet their unexpected losses which they may face in future. So in this scenario, we can define economic capital, that economic capital is calculated internally by financial institution based on its business models and strategies it adopts, and hence the types of exposure it has. जो उसके बिजनेस मॉडल होगा, डिमिनिशिंग मुशारका है, सलम एग्री फाइनेंस है, इजारा मुंतहिया बित्तमलीक है, all these are its business models, and we know that all types of business models have separate risks and they have risk exposures. In the light of these risk exposure, each bank will internally maintain some economic capital as a cushion, that if there is an unexpected loss in future in these business models or the strategies, then the bank will face this unexpected loss by its economic capital. So this economic capital actually ensures the continuing ability of a banking institution to meet its obligation
as they fall due, while also maintaining the confidence of the customers, creditors and other stakeholders in their dealings with the institutions. गोया ये जो इकोनॉमिक कैपिटल है ये इनकी इस बात में भी मदद करता है कि आप अपने आप को, अपने बैंक को, अपने इदारे को उस इकोनॉमिक कैपिटल की बुनियाद पर इतना मजबूत बना देंगे कि अगर आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस आ जाए तो क्रेडिटर के सामने, आपके डिपॉजिटर्स के सामने, दूसरे मालियाती इदारों के सामने जिनके साथ आपका लेन देन है, आपका एतमाद बरकरार रहे, बहाल रहे, और वो ये ना समझें कि ये इदारा डूब गया है। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर लोग, डिपॉजिटर्स, क्रेडिटर्स, वो आ जाएंगे कैश विड्रॉल के लिए और अपने कैश की डिमांड करेंगे, और इस तरह इदारा उसको कैश करंट की सिचुएशन का सामना होगा और इदारा सॉल्वेंसी, इनसॉल्वेंसी की तरफ चला जाएगा। तो इकोनॉमिक कैपिटल जो है बुनियादी तौर पर ये इंश्योरिटी करता है कि इदारा मजबूत है और वो उसके स्टेक होल्डर्स के सामने उसे मजबूत दिखाता है। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट आल्सो सीक टू द फर्दर प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स, बिकॉज जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो डिपॉजिटर्स को भी सिक्योर करता है, एंड अदर सीनियर क्रेडिटर्स बाय प्रोवाइडिंग एन एडिशनल कुशन ऑफ द एसेट। एडिशनल कुशन ऑफ द एसेट इकोनॉमिक कैपिटल को भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि ये इंटरनल रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट की, रिस्क मैनेजमेंट की, कि वो इकोनॉमिक कैपिटल को मेंटेन करते हैं ताकि जो अगर लॉस हो जाए तो डिपॉजिटर को कोई खतरा ना हो, जो अपना चेक लेके आए अगर एटीएम पे चला जाए और वो कैश विड्रॉल कराना चाहे तो उसको उसका पैसा मिल जाना चाहिए। ये एडिशनल इसलिए है क्योंकि ये इंटरनल है। एक्सटर्नल रेगुलेटरी बॉडी जो है जिसे हम बेजल 2 कहते हैं, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंप्लीमेंट कर देता है कि आपका रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जिसे हम कहते हैं CAR, कैपिटल एडिकेसी रेशो। तो कैपिटल एडिकेसी रेशो मेंटेन करना वो एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन की तरफ से रिक्वायरमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, या वो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती है। तो इस वजह से इकोनॉमिक कैपिटल को कहा जाता है कि ये एडिशनल कुशन ऑफ द एसेट है। So this additional cushion of the asset that can be used to meet the claims in liquidation. अगर इदारे को लिक्विडेट करना पड़ जा सकता है तो फिर उस वक्त में ये इकोनॉमिक कैपिटल क्लेम्स को मीट करने के लिए पहले से इस्लामिक बैंक ने या बैंक ने अपने पास उसको मेंटेन किया हुआ होता है। So liquidity cushion or the cushion of assets can also be known as rainy day fund. Economic capital is also known as rainy day fund, यानी जब आप बुरे वक्तों में होंगे तो ये फंड आपके इदारे के उस वक्त ये काम आएगा। तो हम कहते हैं कि ये रेनी डे फंड है। अच्छा, इकोनॉमिक कैपिटल इज यूज्ड फॉर measuring and reporting market and operational risk। एक क्रॉस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के उसके ऑपरेशनल हूँ, खा उसके मार्केट रिस्क को हूँ, उसको मेजर करने में भी ये मदद देता है। सो इकोनॉमिक कैपिटल मेजर रिस्क यूजिंग इकोनॉमिक रियलिटीज रादर देन अकाउंटिंग एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्योंकि जो आप कोई भी रिस्क मैनेजमेंट है वो अपने इकोनॉमिक कैपिटल को मेंटेन करेगी तो अपनी इकोनॉमी की सिचुएशन को सामने रख के करेगी। एक्सचेंज रेट क्या जा रहा है, मार्केट की सिचुएशन क्या जा रही है, लोग परसीव कैसे कर रहे हैं, क्या लोग कैश डिमांड करेंगे कि कैश होल्ड करेंगे, एटसेट्रा। तो लोगों की जो परसेप्शन है वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बढ़ती है और ये रियलिटी है। तो इस जो रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स या रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है कि आपने ये क्वेश्चन मेंटेन करना है, वो रियलिटी बेस्ड नहीं होता। क्योंकि वो तो एक पूरे साल के लिए 10 साल के लिए उन्हें कह दिया कि आपने 8% कैश मेंटेन करना है, रेगुलेटरी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। लेकिन जो इदारा इंटरनली करेगा वो अपने हर साल हर महीने वो चौकन्ना रहता है, अपडेट करेंगे खुद को, मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ वो अपने इकोनॉमिक कैपिटल के और रिस्क को सामने रख कर अपने इकोनॉमिक कैपिटल को मेंटेन करेंगे।
تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو اکنامک کیپٹل ہے ریگولیٹری کیپٹل کی نسبت یہ زیادہ ریالٹی بیس ہے، کیونکہ رسک مینجمنٹ ٹیم جو ہوتی ہے وہ اپنی ارد گرد کے اکنامک اور فائنینشیل انوائرمنٹ کو دیکھ کر اس کو مینٹین کرتی ہے۔